Bismillah. Bismillah Rahman Rahim. Today we talk about in data structure. We want to convert an infix expression to postfix and do its program and its algorithm. Postfix, not fix. Postfix. Okay. What is the infix and what is postfix? This in or this post? There is some announcement. Okay, it's about vaccination. Leave it. Infix in or post, or sometimes the prefix we see. The pre, it is about the operator. Because usually this plus, minus, these are called binary operators. They are binary. They are binary means they work with the two operands. These operators work with two operands. That is A plus B. Like you see A, you see B. There are two operands. These are operands. And this is an operator. And this time the plus is between the two operands. So this will be called as infix. Sometimes you write it like this, plus AB. That I am writing operator first, then operands. So this will be called as a prefix. But sometimes we have AB plus. That means I am writing first the operands, then the operator. The operator on the last, that is called as a postfix. Now question is, if we have an infix, what we have seen all the time, the infix expressions, why we need to convert them into the postfix and prefix? Anybody has any idea why we need to convert them into postfix and prefix? Why the heck we need to convert them into postfix and prefix? Because if we have a long expression, for example, we have an A plus B, then there is a parenthesis, then there is multiplication, then there is C plus D, then there is divide, E, multiply by F, and so on, raised power, whatever, 3. So there's a lot of things going on. And before solving this expression, we need to know two things. One is called as a precedence, or in other terms we call it as a priority. Which one is a priority, greater priority? And second thing is the associativity. This is the C beginning, class of a C programming, where you must have learned it in the first half of your C program, when you have read about the operators. That will be the first week of your C programming. That is BCA first year, first week, where you must have learned about the precedence and associativity. The precedence is which has high priority. For example, आप लोगों ने दावत की मुझे, एज अ टीचर आई हैव गॉन टू यू. अब साथ साथ आपने और स्टूडेंट को भी दावत की. अब सर्व करने की बारी आई, पहले किसको दोगे आप? मैं हूं एज ए टीचर, ठीक है, और एक स्टूडेंट है यहाँ से, इशरत कुरैशी. अब पहले सर्व सर को करोगे या स्टूडेंट को करोगे? डेफिनेटली यू विल सर्व द, माइक ऑन करके बात करो ना. You will serve whom? The teacher, because teacher will have a high priority. ठीक है ना? For example, if here comes the principal sir and HOD and some regular teacher. Now principal sir comes in, सारे खड़े हो जाएंगे. Why? Because उसकी, या अगर हमें उसको सर्व करना है तो पहले सर्व किसको होगा? प्रिंसिपल सर को होगा. अगर कोई बात करना है पहले प्रिंसिपल की बात सुनेंगे, उसके बाद HOD की बात सुनेंगे, उसके बाद रेगुलर टीचर की बात सुनी जाएगी, क्योंकि उनकी प्रेसिडेंस ज्यादा है. तो जिस तरह से आपने पढ़ा होगा आपके मैथ के अंदर बॉड मास, मैक्सिमम पढ़ते हैं बॉड मास यार. जब एक्सप्रेशन करना होता है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि अगर पहले ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट को ज्यादा प्रेसिडेंस है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, फिर आप सब्ट्रैक्ट और ऐड करो. ठीक है? उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस के अंदर भी प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी होती है ऑपरेटर्स कि पहले कौन सर्व होगा. यानी कि अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, क्या ये इनफिक्स फॉर्म में है या पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स फॉर्म में? ये किस फॉर्म में है? ये किस फॉर्म में है? इनफिक्स. ये इनफिक्स फॉर्म में है क्योंकि ऑपरेटर है ना बीच में. बाकी के लोग क्यों नहीं बोल रहे? बी एवरीबॉडी विद मी. एना फयाज चौधरी में कैमरा से आल था.
हाँ, everybody's camera should be on and be with me and talk. बोलो क्या बोल रहा हूं मैं कि ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आई नीड टू नो कि प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है किसकी कम है। जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी उसको पहले करना पड़ेगा। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन में यही परेशानी है कि पहले वी शुड बी नोइंग अबाउट द प्रेसिडेंस। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा इसको सॉल्व करना। और जो हमारी प्रेसिडेंस होती है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है हमारे पास है, जो टॉप में है, जो प्रायोरिटी में सबसे टॉप है, वो है आपका ब्रैक पेरेंथेसिस। चाहे वो लॉन्ग हो, करली हो या राउंड हो, राउंड पेरेंथेसिस, करली पेरेंथेसिस और long parenthesis, we call them as all as parentheses. This is sometimes called as a bracket, it's called curly bracket, a round bracket, and this is called only bracket, long bracket. So they have the highest precedence, but all of them have a same precedence. After that comes the exponent, the raised power. And after that comes divide and multiply. But divide and multiply both have same precedence, right? After that comes plus and minus, which has the lowest precedence. This has the highest, this is the lowest. But plus and minus and multiply and divide, they have the same precedence. That means if they come simultaneously, who will be served first? Now in your operation, if a plus b into c, it is like this. We know first this will be solved. Okay. When this is done, then we can go for the plus, because multiply has high precedence than the plus or minus. But if it is like this, a plus b into c divided by d, now should we go for the multiply first or should we go for the divide first? Right? Because both have same precedence. दोनों में से कोई भी जो left, no, left to right, कोई भी left नहीं. to right. Yes, that is called the associativity. Associativity means if you have a same precedence, अब आप किसको पहले करोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप सारे यहाँ एक ही जैसे स्टूडेंट्स हैं, सब इनको सर्व करना है, तो अब आप किसको पहले दोगे? तो यू विल से भाई इस्लाम इस्तेमाल करेंगे। इस्लाम सेज गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से शुरू करो सर्व करना, ठीक है? क्योंकि सबकी प्रेसिडेंस सेम है। अगर इसमें आपका बाप बैठा होता तो पहले आप बाप के पास जाते, सर आप ले लो, ठीक है ना? बस में आती है। अगर इस महफिल में दुल्हा होता और दुल्हे के साथ साथ बाकी बाराती है, तो जब पानी देंगे हम सर्व करने के लिए, जब पानी उसको हाथ साफ करना है, पहले किसको देंगे? दुल्हे को जाएंगे, क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द बाराती। लेकिन उसके बाद बाराती जो है वो सेम है तकरीबन सारे, अब किसको पहले सर्व करेंगे? क्योंकि उनकी प्रेसिडेंस सबकी सेम है, वो एक ही लेवल पे है। तो वहां एसोसिएटिविटी काम करती है, आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। और यहाँ पे जो मैथमेटिक्स इसमें है, इसमें सब में लेफ्ट टू राइट ही होती है, ठीक है? यानी कि अगर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दो ऑपरेटर मिल गए आपको एक साथ, तो पहले जो लेफ्ट में होगा पहले उसको करो, फिर राइट वाले को करो। तो इनमें यहाँ पे तीन ऑपरेटर्स हैं, प्लस एस्ट्रिक डिवाइड। तो प्लस के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लस की लो प्रेसिडेंस है, ठीक है? वो बाद में होगा, पहले कौन होगा? मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद डिवाइड होगा। तो ये सारी जानकारी और इसके बारे में प्रोग्राम लिखना और ये सारा करना, अब इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हर बार हमें ये सोचना पड़ेगा, पूरी एक्सप्रेशन छाननी पड़ेगी पहले कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद याद रखना पड़ेगा कहां पे कौन ऑपरेटर जिसकी प्रेसिडेंस हाई है उसको सॉल्व करना है। सो इट बिकम्स वेरी टफ, लिटरली इट बिकम्स वेरी वेरी टफ टू डू इट इन अ प्रोग्राम। तो इसलिए हमारे पास एक आसान तरीका आ गया है, जहां ये प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी, ब्रैकेट्स, पेरेंथेसिस, इनका कोई लेना देना नहीं, इन सब को बाढ़ में फेंको और हमारे पास आराम से एक एक्सप्रेशन हो जाएगी। सो वो तब होगा जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इनटू इनफिक्स और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है? तो अगर मेरे पास एक सिंपल सा चीज है a प्लस बी है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं इनटू द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, दिस बिकम्स ए बी प्लस। अगर मेरे पास है a प्लस बी, लेकिन पेरेंथेसिस यहाँ पे है, फिर इनटू c प्लस डी है, ऐसे, ठीक है ना? इसको भी पेरेंथेसिस है। तो यहाँ पे
ऑपरेटर मेरे पास है पेरेंथेसिस प्लस और मल्टीप्लाई। हाईएस्ट किसको प्रेसिडेंस है? पेरेंथेसिस। लेकिन पेरेंथेसिस को चूंकि कोई भी पेरेंथेसिस हो वो एक ही लेवल पे, यानी कि इस पेरेंट्स की प्रायोरिटी भी है इसकी, अब ये करूं या ये करूं, सो दोनों की सेम है। सो आई गो फॉर एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। पहले मैं ये वाला पेरेंथेसिस करूंगा फिर ये वाला। सो इसको मैं जब करूंगा ये बनेगा ए बी प्लस, इसको जब करूंगा ये बनेगा सी डी प्लस। पेरेंथेसिस गया खत्म। अब एक सिंगल टर्म रहेगी, ये भी सिंगल टर्म रहेगी और बीच में मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई आ जाएगा, दैट विल बी ए बी प्लस, दिस इज सी डी प्लस और मल्टीप्लाई आएगा बाहर। अगर इसमें पेरेंथेसिस नहीं होता, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी ऐसे होता, तो इस सूरत में पहले ये होगा क्योंकि मेरे पास अब प्लस मल्टीप्लाई और प्लस है। अब मैं किसको पहले करूं? I have to do the multiply first, so this will be BC into now A plus and plus D, so this will become a single term. अब मुझे आप बताएं कि अब किसको, अब प्लस मेरे पास है, प्लस और प्लस दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, बट एसोसिएटिविटी इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो आई विल गो फॉर दिस फर्स्ट, लेफ्ट टू राइट, दिस बिकम्स A B C into ये सेम सिंगल टर्म है अब, और प्लस इसके पीछे आएगा प्लस D। अब ये वाला होगा दैट इज A B C into प्लस D प्लस, तो ये इसका निकलेगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन है एक्सक्यूज मी, आई एम मेरा थ्रोट भी आज साथ नहीं दे रहा इसमें फंस गया कुछ। एनीवेज, अब इसको हमें करना है यूजिंग द स्टैक एंड यूजिंग द कंप्यूटर। हम कैसे इसको करेंगे और दूसरी बात फिर इसका प्रोग्राम कैसे करेंगे, ठीक है? बहुत इजी है, बहुत इजी है, रूल्स दिमाग में रखो, इट इज वेरी इजी, ठीक है? पहली बात अब याद रखो दिमाग में, इट इज वेरी वेरी इजी, लेकिन रूल्स दिमाग में होने चाहिए, ठीक है? Damn. So what I am saying is we have this expression. For example, हमारे पास expression था, कोई सा भी लेंगे आप, कोई भी expression ले लो, ये वाला a plus b into c divided by d। चलो ये लेते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं काम, जो हमारी एक्सप्रेशन होती है किसी वेरिएबल में होगी हमारे पास एक्सप्रेशन, we start from the left, we start scanning from the left, एक एक करके हम इसको स्कैन करते जाएंगे, ठीक है? इसमें रूल्स अप्लाई होंगे, वही हम रूल्स फिर अपने प्रोग्राम में लिखेंगे। रूल पहला ये होगा कि भाई अगर लेफ्ट पेरेंथेसिस है, अगर क्या है लेफ्ट पेरेंथेसिस है, इसको आप स्टैक में डालो। किस में डालो? स्टैक में। डल गया? यहां पे जो आपका रिजल्ट एक्सप्रेशन होगा जिसमें पोस्ट फिक्स कहूंगा वो बनता जाएगा यहां पे, ठीक है? वो यहां पे बनेगा, यहां से हम स्कैन करते जाएंगे और बीच में हमारा स्टैक है जो हेल्प करेगा हमें इन ऑपरेटर्स को पोस्ट फिक्स में डालने के लिए। बट वी हैव टू फॉलो द रूल्स। ये रूल्स दिमाग में आ गए तो बात बड़ी सिंपल हो जाएगी, प्रोग्राम करना तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, एबीसी हो जाएगा, ठीक है? तो पहला रूल, अगर आपको क्या मिल गया, लेफ्ट पेरेंथेसिस, कहां डालेगा? स्टैक रखा आपने याद। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी चीज होता है, जैसे ए बी है, सी है, डी है, कुछ भी अल्फाबेट्स है, 0 1 2 4 5 कुछ भी है, वो सीधे इधर जाएगा, पोस्ट फिक्स में जाएगा, वो सीधे पोस्ट फिक्स में जाएगा। सो ए मेरे पास है, कहां जाएगा? स्टैक में जाएगा या पोस्ट फिक्स में जाएगा? पोस्ट फिक्स। हाँ, पोस्ट फिक्स में जाएगा सीधे। उसके बाद अगर ऑपरेटर है, अगर क्या है, इसमें ख्याल रखना है, ऑपरेटर तो जाएगा स्टैक के अंदर, लेकिन इसमें ख्याल रखना है, ख्याल ये रखना है कि अगर यहां पे फर्ज कीजिए यहां पे प्लस था, ठीक है? फर्ज कीजिए यहां पे हमारे पास एक और प्लस था, माइनस था और मल्टीप्लाई था, ऑलरेडी स्टैक में गई थी। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा सिलसिला था, ठीक है? मुझे प्लस डालना है, प्लस के ऊपर काम करना है, लेकिन मैं देख रहा हूं स्टैक के टॉप में क्या है, मल्टीप्लाई। क्या प्लस की प्रेसिडेंस हाई है कि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हाई? मल्टीप्लाई। हमें ये देखना, रूल ये बोलता है कि अगर स्टैक के अंदर इसको मिलते हैं ऑपरेटर्स जिनकी इनको प्रेसिडेंस ज्यादा है या बराबर है,
ज्यादा या बराबर, वो सारे पॉप होके पोस्ट फिक्स में जाएंगे। यानी कि अगर प्लस को मुझे डालना है, टॉप के साथ देखेगा भाई साहब मल्टीप्लाई, इसकी ज्यादा प्रेसिडेंस है तो मल्टीप्लाई इधर जाएगा, ठीक है, पॉप हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कौन है, प्लस, उसके साथ भी कंपेयर लगेगा, प्रेसिडेंस सेम है, ये भी पॉप होगा। माइनस, प्रेसिडेंस सेम है, ये भी पॉप होगा, ठीक है। तो ऑपरेटर को स्टैक में डालने से पहले यू हैव टू सी दैट वेदर व्हाट the precedence in the stack is either same or greater, then pop them till you find something which has a low precedence. Do you understand? Other than the इसके बगैर ये तब होगा जब इसको तब निकालेंगे जब इसका ये मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस एग्जाम्पल के लिए मुझे सूरत कुछ नहीं थी, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं था, तो मुझे कंपैरिजन कुछ नहीं है यहाँ, तो सिंपल है मुझे, ठीक है ना। बिकॉज यहां पे जो मेरा है, मैं ए की बात कर रहा हूं, सॉरी प्लस की बात कर रहा हूं, यहां पे स्टैक में कुछ भी नहीं है, स्टैक में खाली कौन है, दिस ओपनिंग पेरेंट, सो दैट मींस आई शुड पॉप पुश इट इनटू द स्टैक, राइट। आफ्टर दैट इज बी, शुड आई पुश इट और नॉट, नो, Postfix. I should put in the postfix, so it will come here. After that is closing parentheses. Whenever the rule is, whenever there is closing parentheses, pop everything from the stack. Pop, say for example मेरे में stack में इस सूरत में फर्क ये है, multiply है, plus है, minus है, फिर ये था। If you find the closing parentheses, you have to pop each and everything till you find what? Till you find the opening, and add them all to the postfix, and also pop this but discard this. You also pop the left parent but you have to discard it, ठीक है। इसको इस पे, क्योंकि postfix एक्सप्रेशन में कोई पेरेंथेसिस नहीं होता, ये याद रखो पहले, postfix एक्सप्रेशन में पेरेंथेसिस नहीं होता, क्योंकि we don't want any parenthesis. We want a simplified expression which can be done without knowing the rules of precedence and associativity. I don't want to know the rules of associativity. I don't want to know the rules of precedence. I want to solve it, and I need a postfix expression which can help me in doing that. So that my job will become very easy. Do you understand? So therefore, if you pop everything from the stack and put it onto the postfix, and also pop last में ये भी pop करोगे आप, ओपनिंग भी, लेकिन इसको क्या करोगे, डिस्कार्ड, इसको फेंकोगे आप, Discard. ठीक है, आई समझ में। ओके, सो इस सूरत में जो मेरी अभी हमारी जो यहाँ पे है, यहाँ क्लोजिंग पेरेंट आ गया। क्लोजिंग पेरेंट में क्या हो जाएगा, ये पॉप करेगा हर एक चीज। फिलहाल मेरे पास क्या है, यहाँ पे प्लस खाली है, तो प्लस पॉप हो जाएगा और ये भी पॉप हो जाएगा, लेकिन इस बंदे को क्या करेंगे हम, इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, ये भी पॉप होगा बट इसलिए डिस्कार्डेड, ठीक है। तो स्टैक अभी मेरा खाली होगा इस सूरत में, ठीक है। रूल समझ आ रहे हैं, ओके। उसके बाद क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई, है ना। अब क्या है मेरे पास, मल्टीप्लाई। So where will it go? It will go into the Stack. 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 But the thing is that stack is empty. लेकिन अगर यहाँ पे स्टैक के अंदर फर्ज कीजिए हमारे पास प्लस होता, माइनस होता, ठीक है, तो क्या ये प्लस माइनस पॉप हो जाते हैं स्टार के आने से? नहीं। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस की प्रेसिडेंस कम है देन द स्टार। वो बंदे पॉप हो जाएंगे जिनकी प्रेसिडेंस आइदर ग्रेटर देन होगी या बराबर होगी। जो आने वाला इनकमिंग ऑपरेटर जो मेरे पास है उससे अगर बराबर होगी या ज्यादा होगी तब जाके पॉप होगी। बट इन दिस सिनेरियो जो मेरे पास अगर यहाँ पे प्लस है और माइनस है जिनकी प्रेसिडेंस कम है, देन द एस्ट्रिक इट वोंट गेट पॉप्ड। अगर अगर यहाँ पे डिवाइड होता या मल्टीप्लाई भी होता तो ये दोनों पॉप होते। क्यों? क्योंकि स्टार इनकमिंग जो ऑपरेटर स्टार है उसको इनसे ज्यादा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है। अगर बराबर है तो करो, क्योंकि ये लेफ्ट में आ चुके हैं। ये क्यों ऐसा रूल है? क्योंकि जब हमारे पास मैंने कहा था कि ए से फॉर एग्जांपल इनटू बी डिवाइडेड बाय सी होगा,
तो स्टार घुस गया है इसमें स्टैक के अंदर, अब स्लैश आ गया है। तो चूंकि इनकी प्रेसिडेंस सेम है एंड एसोसिएटिव इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वी हैव टू पॉप इट, तो पहले इसको सर्व करना पड़ेगा, पहले स्टार को ही सर्व करना पड़ेगा। इसलिए अगर सेम प्रेसिडेंस वाले स्टैक में अंदर आते हैं, उसका मतलब है कि वो लेफ्ट एक्सक्यूज मी, उसका मतलब है कि वो लेफ्ट में आ चुके हैं, वो लेफ्ट में है। सो वी हैव टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो वी हैव टू गेट देम आउट। अगर हमारी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, फिर हमें पॉप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे हैं एसोसिएटिव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आई हैव टू पॉप देम, क्योंकि पहले उन्हीं को सर्व करना है जो स्टैक में आ चुके हैं। क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस सेम है, तो उसका मतलब है वो लेफ्ट वाले जो बंदे हैं वो स्टैक के अंदर है, अब राइट वाला बंदा आ गया, इसलिए उनको पॉप करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरे इस कंडीशन में मेरे पास कोई भी नहीं है यहाँ पे, सो स्टार सीधे स्टफ होगा इनटू द स्टैक, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। लेकिन मैं सारे सिनेरियोस बता रहा हूँ आपको कि अगर सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि स्टैक के अंदर ऑपरेटर्स हैं लेकिन उनकी प्रेसिडेंस कम है, सो डोंट पॉप देम। लेकिन अगर स्टैक के अंदर ऑपरेटर्स है और उनकी प्रेसिडेंस ज्यादा है या बराबर है, यू हैव टू पॉप देम फर्स्ट, यू हैव टू सर्व देम फर्स्ट। डू यू अंडरस्टैंड? रूल समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद कौन है आपका? ओपनिंग। उसके बाद सी है। अब सी के ऊपर आ गया ना ऑपरेंड, ऑपरेंड, वो कहाँ जाएगा? सीधे इधर। पोस्टफिक्स, अब डिवाइड आ गया, इनकमिंग इज डिवाइड। नाउ इनकमिंग इज व्हाट? डिवाइड। डिवाइड। क्या डिवाइड पुश होगा? स्टार को क्या हो जाएगा बताओ? स्टार पॉप होगा पहले डिवाइड। क्यों? पॉप नहीं होगा यस, पॉप क्योंकि होगा। सेम प्रेसिडेंट है ना सर। सर इसकी सेम हाँ, प्रेसिडेंस मैंने है आपसे कहा कि अगर प्रेसिडेंस सेम हो या ज्यादा होगी इनकमिंग तो की, पॉप होगा। तो पॉप होगा, तो पॉप होगा। तो इसका मतलब पहले स्टार पॉप होगा, वो यहाँ पे आ गया है। क्योंकि सीधी सी बात है कि जहां पे स्टार और डिवाइड, देखो अकल लड़ाओ यहाँ पे, जब स्टार और डिवाइड आ रहे हैं, मुझे पता है कि पहले स्टार होना चाहिए लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट के हिसाब से, लेफ्ट टू राइट के हिसाब से पहले किसको सर्व करना चाहिए? स्टार को। इसीलिए तो मैं उसको पॉप कर रहा हूँ, स्टार, इसलिए मैं उसको पॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्टार आपका पॉप होगा और यहाँ पे कौन आएगा आपके पास? स्टैक के अंदर आपके पास खाली डिवाइड बाय आएगा। उसके बाद डी है तो डी इधर जाएगा और एक्सप्रेशन खत्म होगी। जब एक्सप्रेशन खत्म होगी उसके बाद स्टैक में जो भी बचा है, जो कुछ भी बचा है, उसको उठा के पटक दो यहाँ। अगर फर्ज के यहाँ पे डिवाइड प्लस माइनस था, वो सारे पहले डिवाइड पॉप होता, फिर प्लस, फिर माइनस, वो सारे इसके साथ ऐड हो जाएंगे जब तक कि स्टैक खाली ना होगा, जब तक कि टॉप -1 नहीं आएगा, तब तक पॉप करते जाओ। तो फिलहाल मेरे पास एक ही बंदा है यहाँ पे डिवाइड, वो डिवाइड यहाँ पे लगेगा और ये इसकी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? गुड। एक मिनट मैं देखता हूँ बैटरी है। ठीक है, मेरे पास 10 मिनट बचे हैं। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल मैंने चिपकाई थी कहीं से, हाँ ये है। ठीक है, अब आप मुझे इसकी खुद करके दो, ट्राई टू डू इट यूरसेल्फ। ठीक है ना? देखिए पहले हम जब इनफिक्स एक्सप्रेशन लाते हैं, व्हाट वी डू, वी स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो हम फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू जो भी इसका नाम होगा इनफिक्स एक्सप्रेशन का, हाँ, डॉट लेंथ लेस देन, वहां तक चलते जाएंगे, यानी कि 0 से लेके यहां तक हम चलते जाएंगे। अगर फर्ज कीजिए ये s में है, इस स्ट्रिंग, एक वेरिएबल था स्ट्रिंग s, उसके अंदर ये एक्सप्रेशन थी, ठीक है, ये सारा, तो हम लूप कहां से चलाएंगे? फॉर i इज इक्वल टू 0 अप टू s डॉट लेंथ लेस देन s डॉट लेंथ। हाँ, हम लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 0 अप टू i इज लेस देन s डॉट लेंथ, तब तक चलते जाओ, i प्लस प्लस तो करते जाओ। तो स्कैन करूंगा मैं, पहला बंदा कौन है? k। व्हाट इज इट? k। दिस इज माय स्टैक। हाँ, ये स्टैक है, ये वाला बंदा, ये जो है ना, ये स्टैक दिखा रहा है, ये सिंबल हम स्कैन जो कर रहे हैं, और ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन रही है। तो k इज के ऑपरेटर और ऑपरेंड? ऑपरेंड, Where will it go? ऑपरेंड, Where will it go? Post fix. पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स। After that is plus. What will happen to the plus? सर Post इट विल stack. गो इनटू द स्टैक, Push it onto the stack. स्टैक। Okay. After that is L. Post fix expression में जाएगा. सर पोस्टफिक्स, यस सर। After that is minus. But minus क्योंकि यहाँ पे प्लस है, स्टैक के अंदर क्या है? प्लस। But minus has same precedence as that of plus.
सो इसका मतलब है, मैंने कहा अगर लेस देन, अगर जो इनकमिंग ऑपरेटर होगा अगर उसको ग्रेटर देन या बराबर है प्रेसिडेंस तो वो पॉप कराएगा वहां पे, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे प्लस है, क्या प्लस पॉप होगा या नहीं होगा? सो प्लस विल प्लस पॉप, पॉप होगा, माइनस स्टैक माइनस इन हो जाएगा, माइनस विल पुश एंड प्लस फर्स्ट प्लस विल पॉप। क्यों? क्योंकि प्लस जो इनकमिंग माइनस हमारे पास था, इनकमिंग था हमारे पास माइनस, ठीक है। इट हैज हाई प्रेसिडेंस देन दैट ऑफ ए, it has same precedence as that of a plus, so it will what, it will pop, ठीक है। पॉप। उसके बाद कौन है मेरे पास? m, एम m सीधे जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मल्टीप्लाई है, हाँ मल्टीप्लाई जब आएगा तो हमारे स्टैक में क्या है? माइनस, माइनस की माइनस। प्रेसिडेंस सेम है या कम है? कम है, तो ये पॉप कम नहीं होगा, तो ये पॉप, होगा। ये पॉप नहीं, किसी प्रेसिडेंस कम है तो ये पॉप नहीं होगा। तो यानी कि स्टैक में रहेगा माइनस और स्टार, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? n, n सीधे इधर जाएगा। उसके बाद प्लस, हाँ तो बता प्लस के वक्त क्या हो जाएगा? प्लस के वक्त ये मल्टीप्लाई पॉप हो जाएगा, और माइनस, क्योंकि माइनस भी पॉप होगा, माइनस भी क्योंकि पॉप क्योंकि क्योंकि मल्टीप्लाई की इससे इनकमिंग से हाई है। इनकमिंग हमारे पास कौन है? प्लस, इनकमिंग हमारे पास प्लस है ना। प्लस की जो अंदर बैठा है स्टार, उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है प्लस से, सो ये क्या हो जाएगा? ये पॉप हो जाएगा, हो गया पॉप। उसके बाद माइनस बैठा है उधर, माइनस की प्रेसिडेंस सेम है तो वो भी पॉप हो जाएगा, हो गया वो भी पॉप। और अब घुसेगा आपको प्लस अंदर, ये प्लस जो आपका ऑपरेटर था ये अंदर गया स्टैक के अंदर, और वहां पे माइनस और जो स्टार था वो बाहर निकला क्योंकि उनकी प्रेसिडेंस सेम थी, ठीक है। ये बातें जो हम कर रहे हैं, रूल्स हम कर रहे हैं, यही प्रोग्राम में करेंगे, बहुत सिंपल होगा ना। उसके बाद कौन है आपका? लेफ्ट पेरेंट। तो लेफ्ट पेरेंट सीधे अंदर जाएगा, उसको तो देखना ही नहीं है कुछ, उसको कंपैरिजन लगाना ही नहीं है कुछ। लेफ्ट पेरेंट जब है, कंपैरिजन कुछ नहीं करना है, सीधे डालो किसमें? स्टैक के अंदर, हो गया। उसके बाद कौन है भाई साहब? ओ, ओ किधर जाएगा? सीधे जाएगा ओ इसके अंदर, गया। उसके बाद कौन है? कैरेट। अब कैरेट जो है इनकमिंग ऑपरेटर जो है, इनकमिंग ऑपरेटर इज द कैरेट, दैट मींस द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेसिडेंस है। अंदर कौन बैठा है? प्लस और पेरेंट, तो ये सीधे अंदर जाएगा। इसमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी पेरेंट होगा प्लस इसके पीछे बैठा है तो उसके साथ छेड़ना नहीं है पेरेंट के साथ। जब लेफ्ट पेरेंट होता है तो उसके साथ कंपैरिजन लगना नहीं है, वहां पे डालो आप सीधे, उसमें सीधे पुश करो, ठीक है। हो गया पुश। अब कौन आ गया वहां से? पी, पी जाएगा सीधे इधर, हो गया। उसके बाद कौन है? राइट, राइट पेरेंट। अब राइट पेरेंट है भाई साहब, राइट पेरेंट। जो ही राइट पेरेंट होगा तो क्या हो जाएगा? वो ढूंढेगा लेफ्ट पेरेंट को। जब तक कि लेफ्ट पेरेंट नहीं मिलता तब तक सारे निकालते जाओ, सारे सारे। यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक ही है। अगर फर्ज कीजिए हमारे पास लेफ्ट पेरेंट था, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी था, वो सारे निकलते एक साथ जब तक कि लेफ्ट पेरेंट नहीं होगा। फिर लेफ्ट पेरेंट भी पॉप होता और उसको डिस्कार्ड करते, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे कैरेट निकलेगा, दैट इज हियर, और लेफ्ट पेरेंट भी निकलेगा बट दैट इज डिस्कार्डेड, वो कहीं पे जाएगा नहीं, ठीक है ना। और बचा स्टैक में कौन? खाली प्लस। अब कौन आएगा यहाँ पे? अब स्टार है, तो स्टार सीधे अंदर जाएगा, गया। क्योंकि प्लस वहां बैठा था, उसको लो प्रेसिडेंस है, वो नहीं निकाल पाएगा इसको, उसको बैठना पड़ेगा उधर ही, बैठ गया। उसके बाद कौन है हमारे पास? डब्ल्यू, और उसके बाद स्लैश, तो डब्ल्यू यहां जाएगा। अब जब स्लैश, इनकमिंग स्लैश है, उसकी प्रेसिडेंस बराबर है स्टार से, तो क्या होगा? स्टार निकलेगा, स्टार निकलेगा। क्या प्लस निकलेगा? नहीं, क्योंकि ये लो है, क्योंकि प्लस इज लो इन प्रेसिडेंस देन स्लैश, ये नहीं निकलेगा। तो प्लस उधर ही बैठेगा और स्लैश आ गया उधर, ठीक है ना। बस आई, ओके। प्लस स्लैश के बाद कौन है? यू, उसके बाद स्लैश यू स्लैश वी इंटू टी प्लस क्यू, ओके। तो हमारा जो यहाँ पे लिखता हूं, स्लैश यू स्लैश वी इंटू टी प्लस क्यू, ये हमारे पास है। हम पहुंच गए यहाँ पे, तो यू घुस गया सीधे, यहाँ पे घुस गया ना। उसके बाद कौन आएगा? स्लैश। जब स्लैश आएगा, ये तो स्टैक में जाना है इसको, लेकिन इससे पहले स्टैक में जाएगा, वहां पे जो ये स्लैश है उसको तो सेम प्रेसिडेंस है ना, पॉप करेंगे।
उसको पॉप करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे आएगा और ये वाला स्लैश जो है वो स्टैक में गया, ठीक है, ये यहाँ पे, और अब वी आ गया, वी इधर बैठेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई जब आएगा अंदर कौन बैठा है, ये प्लस और स्लैश, दोनों में से कौन निकलेगा बाहर, स्लैश, स्लैश, क्योंकि स्लैश को सेम प्रेसिडेंस है ना, वो निकलेगा, प्लस लो में है, प्लस नहीं निकल सकता, तो ये स्लैश निकलेगा, वो यहाँ पे आएगा वी के बाद, और स्टार जाएगा अंदर, उसके बाद टी वो आएगा इधर, उसके बाद प्लस। हाँ, अब जब प्लस आया, इनकमिंग इज प्लस, जो स्टैक में बैठा है, स्टैक में बैठा है प्लस और स्टार, स्टार की हाई प्रेसिडेंस है वो बाहर निकलेगा, प्लस की सेम प्रेसिडेंस है वो भी बाहर निकलेगा, निकल गया ना प्लस भी बाहर, ठीक है, और स्टैक खाली रह गया। अब ये प्लस क्या हो जाएगा, पुश, ठीक है, उसके बाद आ गया क्यू, क्यू रहेगा बाहर, ठीक है, और स्टैक हो गया एक्सप्रेशन हो गई खत्म। अब जो भी स्टैक में है वो आप डालो लास्ट में, वो प्लस, यहाँ पे खाली प्लस बचता है, वो आ गया यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। We have less than 1 minute left. Yes, sir. We will make one screenshot, print screen, and we will come back for a program. Okay, we will come back for the program. We will complete this. Okay. Okay. Well, less than 1 minute left. Okay. मेरा चार्ज कितना है बचा है? We have at least some 40 minutes. We can go for another session quite easily for the program. हाँ, इसको खत्म करेंगे. We have less than 1 minute left. It will just go. Okay, I've landed for.